السلام علیکم میرے سبھی لسنرز۔ آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر دشمن جاں ناول کے ساتھ، جس کی رائٹر ہیں فاطمہ ٹیلز، اور یہ اس کی 19ویں ایپیسوڈ ہے۔ جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ رئیسہ فاطمہ کے بیڈ روم کے ایک کونے میں دب کے بیٹھی تھی، جیسے کوئی بچہ کسی طوفان سے بچنے کی کوشش میں خود کو سمیٹ لے۔ دوپہر کی دھوپ کب شام کی دھند میں ڈھل گئی، کسی نے نہ محسوس کیا، لیکن رئیسہ کے آنسو پلکوں سے تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ فاطمہ کب سے اس کے پاس بیٹھی تھی، کبھی اس کے سر پر ہاتھ رکھتی، کبھی اس کے کندھوں پر تسلی بھرا لمس دیتی، لیکن رئیسہ کے وجود میں ایسا زلزلہ آیا تھا کہ اس کی خاموشی بھی چیخ بن گئی تھی۔ رئیسہ، اگر رونے سے سب ٹھیک ہو سکتا تو مجھے بتاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کر رو لیتی ہوں۔ فاطمہ کی آواز میں ہمدردی تھی، محبت تھی، لیکن بے بسی کا ایک ہلکا سا رنگ بھی نمایاں تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کی روح کی تھکن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رئیسہ نے سر اٹھایا، آنکھوں میں بے یقینی اور درد کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ سیام نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا کہ میں کہاں جاؤں گی۔ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، مگر وہ سب ماضی کا حصہ تھا۔ اس کی آواز میں ٹوٹ پھوٹ تھی، جیسے ہر لمحہ اپنے ساتھ ایک نیا زخم لے کر آ رہا ہو۔ وہ چھت کی طرف دیکھ رہی تھی، شاید خدا سے سوال کر رہی تھی، یا اس وقت کو پکار رہی تھی جہاں سے سب کچھ ٹوٹنے سے پہلے جڑا ہوا تھا۔ فاطمہ آہستہ سے اس کے قریب ہوئی، اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ رئیسہ، عورتوں کا ماضی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ معاشرہ ہمیں ہمارے کل کے گناہوں کے ساتھ جینے نہیں دیتا۔ مگر تم اکیلی نہیں ہو، میں سیام سے بات کروں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ رئیسہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آنکھیں بند کر لی، جیسے اب اسے کچھ سننا نہیں، صرف وقت گزارنا ہے، خاموش، بے صدا۔ فاطمہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے آہستگی سے کہا، اچھا چھوڑو یہ سب، سیام کو میں خود دیکھ لوں گی۔ تم بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ رئیسہ نے ہلکے سے سر ہلایا، نہیں، کچھ نہیں کھانا، بھوک نہیں ہے۔ اس کا لہجہ مدھم تھا، جیسے نیند اسے اپنے دامن میں چھپا لینا چاہتی ہو۔ فاطمہ اس کے چہرے پر ایک آخری نظر ڈال کر اٹھی، کمبل اڑایا اور آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی رئیسہ نے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں پھیلی خاموشی جیسے اس کے اندر کی تنہائی سے ہم آہنگ ہو گئی ہو۔ اس نے تکیے پر چہرہ چھپایا اور سیام کی یادوں کے ساتھ وہ آنسو بہانے لگی جو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ حویلی ماتم کدہ بن چکی تھی، دیواروں سے ٹکراتی چیخیں، قدموں کی بھاگ دوڑ اور ہجوم کی بڑبڑاہٹیں بتا رہی تھی کہ کوئی طوفان آ چکا ہے۔ نوکروں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، عورتوں کے حلق خشک ہو چکے تھے اور مرد چھت کی طرف دیکھ کر تسبیح گن رہے تھے۔ روما حویلی چھوڑ کر جا چکی تھی، اور اب یحییٰ صاحب پاگل پن کی سرحد کو چھو رہے تھے۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ ان کی گرجتی ہوئی آواز نے دیواروں کو ہلا کر راکھ کر دیا۔ کمرے کے بیچ رکھے لکڑی کے میز پر ان کا مکہ ایسے پڑا جیسے زمین پھاڑ دینا چاہتے ہو۔ موسیٰ کے چہرے پر بھی اضطراب کی لکیریں گہری ہو چکی تھیں۔ اس نے کئی علاقوں میں اپنے لوگ بھیجے تھے، مگر روما کا کہیں کوئی سراغ نہیں تھا۔ اسماعیل، فردان کا پتہ کرو، کہاں چھپا ہے وہ؟ مجھے میری بیٹی چاہیے، ہر قیمت پر۔ یحییٰ صاحب کی آواز اس وقت آندھی کی طرح گونجی جب گھر میں ویسے ہی ہو کا عالم تھا۔ اسماعیل نے لرزتی آواز میں اطلاع دی، سر وہ بھی غائب ہے۔ غائب ہے؟ یحییٰ صاحب کی آنکھوں میں آگ دہکنے لگی۔ میں نے کہا تھا، اس کے خاندان کا، اس کے رشتوں کا، اس کے ماضی کا، سب کا پتہ کرواؤ۔ کس سے تعلق ہے، کہاں رہتا ہے؟ اسماعیل نے حلق تر کیا اور جیسے موت کا فیصلہ سنایا ہو، سر فردان، وہ مس فاطمہ کا تایا زاد ہے۔ یہ سنا تھا کہ یحییٰ صاحب کا ہاتھ پوری قوت سے میز پر پڑا، میز لڑکھڑا کر نیچے آ گری۔ یہ لڑکی ہمارے خاندان کی جان کب چھوڑے گی، کب؟ وہ لفظ چبا چبا کر بول رہے تھے، نفرت کا زہر ان کی آواز میں ٹپک رہا تھا۔ موسیٰ کی آنکھیں اسماعیل پر گڑی تھی، جیسے اس نے فاطمہ کا نام لے کر جلتی پر تیل چھڑک دیا ہو، مگر اگلے لمحے یحییٰ صاحب کی آواز نے سب پر لرزہ طاری کر دیا۔ موسیٰ، اپنی اس نام نہاد بیوی سے کہو، اگر مجھے آج شام تک میری بیٹی نہ ملی تو جو طوفان میں لاؤں گا اس کے پورے خاندان کو بہا لے جائے گا۔ پہلے صرف باپ کو مارا تھا، اب سب مریں گے۔
अगर शाम तक रोमा हवेली ना आई तो सज़ा सिर्फ मौत है। मूसा ने पलटकर याया को देखा, लब सख्ती से भींच लिए और बगैर कुछ कहे बाहर निकल गया। कमरे के कोने में खड़ी मरहा का दिल कांप रहा था, टांगें लरज रही थी। माँ जबीन उसकी तरफ बढ़ी, चेहरा सुन, आवाज़ बेजान। दुआ करो तुम्हारी बहन मिल जाए, वरना तुम्हारा बाप तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मरहा का रंग फक हो गया। उसे लगा जैसे दीवारें उस पर झुक रही हैं और ज़मीन उसके पाँव के नीचे से निकलती जा रही है। उसके इर्द गिर्द सब कुछ धुंधला गया, सिर्फ याहिया साहब की वो आवाज़ गूंज रही थी, मौत, सिर्फ मौत, अगर मेरी बेटी ना मिली। फातिमा फरदान का पैगाम देने ताया के घर आए तो दोपहर की नर्म धूप बरामदे में छन रही थी। सहन में रखी कुर्सियों पर गर्द की हल्की तह जम चुकी थी, जैसे वहाँ कुछ दिनों से कोई बैठा ही ना हो। वो दरवाज़ा धीरे से खोलकर अंदर दाखिल हुई तो हफ्सा बेगम उसे देखकर खुशी से चौंक पड़ी। तुम्हें पता है तुम कितने दिनों के बाद आई हो यहाँ? हफ्सा बेगम ने उसके करीब बैठते हुए मोहब्बत से शिकवा किया। फातिमा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नज़रें चुराई। जी ताई अम्मी, बस मसरूफियत कुछ ज़्यादा हो गई थी। मैं दरअसल फरदान का बताने आई थी। वो कल रात इस्लामाबाद चला गया था। उसने श्याम को कॉल की थी, लेकिन आप लोगों ने रिसीव नहीं की तो उसने मुझे बता दिया। क्या आपको बता दूं? वो हकीकत छुपा गई थी, मगर आवाज़ में नरमी थी। हफ्सा बेगम ने गहरा सांस भरा। एक तो मैं इस लड़के से बहुत परेशान हूँ, ज़रूर अपने दोस्तों के साथ गया होगा। इस दफ़ा आने दो, तुम्हारे ताया ही इसकी खबर लेंगे। अभी वो बात मुकम्मल भी ना कर पाई कि अचानक उन्हें रईसा याद आ गई। फातिमा, रईसा कैसी है? कमरे से निकलते श्याम का कदम रुक गया। रईसा का नाम सुनकर उसकी सांस जैसे एक लम्हे को थम गई। पिछले 3 दिनों में उसकी याद एक पल को भी उसे नहीं छोड़ सकी थी। फातिमा ने जवाब दिया, मगर आवाज़ में तल्खी छुपी हुई थी। बिल्कुल ठीक है, बहुत जल्द मामा के साथ आऊँगी खुशखबरी लेकर। श्याम की तरफ उसकी नज़र नफ़रत से चमकी। कैसी खुशखबरी? हफ्सा बेगम को तजस्सुस हुआ। फातिमा ने शौकी से आंख मटकाई। अरे ये तो सरप्राइज़ है, जल्द पता चल जाएगा। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। हफ्सा बेगम किचन की तरफ बढ़ गई। फातिमा अब आहिस्तगी से श्याम की तरफ बढ़ी। वो अभी भी सीढ़ियों के पास साकित खड़ा था, जैसे रईसा का नाम उसकी रूह में कहीं गूंज गया हो। ज़रा से शर्म भी नहीं आई उसे घर से निकालते हुए, ये जानते हुए भी कि उसके पास रहने को कोई जगह नहीं। फातिमा के अल्फाज तेज़ धार छुरी की तरह थे, जो सीधा श्याम के ज़मीर पर लगे। श्याम ने पलकें झपकाई। ये मेरा और उसका पर्सनल मैटर है, खुद पर काबू रखते हुए बोला। वो पलटने लगा, मगर फातिमा ने रास्ता रोक लिया, आंखों में गुस्सा, लहजे में आग। अगर इतना पर्सनल है तो तुम्हारी बीवी मेरे घर क्या कर रही है? श्याम चाहा, पर्सनल कहने और पर्सनल रखने में बड़ा फ़र्क होता है। अफसोस है मुझे तुम जैसे मर्दों पर, जो अपनी बीवी के एक्स को मारने के बजाय बीवी को घर से निकाल देते हो। शेम ऑन यू। फातिमा तंज के जहर भरे तीरों के साथ दरवाजे से बाहर निकल गई। श्याम वहीं खड़ा रहा। उसकी मुट्ठियाँ सख्ती से भीज गई, आंखों में चुभती चिंगारियाँ थी, मगर जुबान पर कुफल, जैसे वो अंदर ही अंदर टूट रहा हो। जुमा की नमाज ख़त्म हो चुकी थी। मस्जिद के सहन में सुकून ऐसा छाया था जैसे वक्त ने कुछ लम्हों के लिए सांस रोक ली हो। धूप की सुनहरी ज़रात मस्जिद के मेहराबों से छन कर फर्श पर बिखर रहे थे। सब नमाजी जा चुके थे, सिर्फ शहसवार एक कोने में बैठा, आंखें मूंदे खामोशी से फिजा में कुछ तलाश कर रहा था। वो अक्सर ऐसा ही करता था, जैसे मस्जिद के सन्नाटे में उसे खुदा की आवाज़ सुनाई देती हो। अचानक उसके करीब एक हल्की चाप सुनाई दी। दाएं जानिब एक बुजुर्ग आकर बैठ गए। वो मस्जिद के इमाम थे। एक नर्म चेहरा, सफ़ेद दाढ़ी और आंखों में बरसों का वक़ार। उन्होंने मोहब्बत से शहसवार के कंधे पर हाथ रखा। मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ, सब चले जाते हैं, तुम सबसे आखिर में जाते हो, ऐसा क्यों करते हो बेटा? शहसवार ने आहिस्ता से आंखें खोली। अंदर की दुनिया जैसे बाहर झलकने लगी। क्योंकि मैंने अल्लाह के दर पर आने में देर कर दी, इसलिए अब ज़्यादा वक्त यहीं गुजारता हूँ। उसकी आवाज़ में नरमी थी, लेकिन लफ्ज़ों में नदामत छुपी थी। इमाम साहब मुस्कुरा दिए। उनकी मुस्कुराहट में शफ़क़त थी। कुछ पाने की ख्वाहिश है तुम्हारे अंदर? शहसवार ने इकबाल को मस्जिद के ऊंचे
نیلے گنبد کو دیکھا جیسے وہاں کوئی جواب لکھا ہو۔ پانی کی خواہش تھی لیکن اب نہیں ہے۔ کیا کوئی شکوہ ہے خدا سے؟ امام صاحب کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری۔ شہسوار نے گردن ہلکی سی جھکائی۔ شکوہ نہیں، بس یہ یقین ہے کہ خدا کو مجھ سے شکوہ ضرور ہوگا کہ میں دیر سے لوٹا۔ مسجد کے ہال میں ایک ہوا کی سرسراہٹ گونجی، جیسے دیواریں بھی خاموشی سے یہ گفتگو سن رہی ہوں۔ تم نے سنا ہے نا؟ دیر آئے درست آئے، امام صاحب نے نرمی سے کہا اور خود ہی اپنی بات پر ہنس دیے۔ شہسوار کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ہر دیر درست نہیں ہوتی حاجی صاحب، کچھ دیر انسان کو زندگی بھر کی ندامت دے جاتی ہے۔ امام صاحب نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کسی کو کھویا ہے تم نے؟ شہسوار نے نظریں جھکا لی۔ کسی کو کھویا ہے، کسی کو پایا ہے۔ مطلب؟ جب اسے دور ہوا تو خدا کو پا لیا، اب شکوے نہیں ہیں حاجی صاحب۔ وہ آہستہ سے کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب بھی کھڑے ہوئے۔ میں دعا کروں گا خدا تمہیں وہ دے جس کی تمہیں تلاش ہے، آمین۔ شہسوار نے سر اٹھا کر آخری بار مسجد کی گنبد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں روشنی کی ایک چمک تھی، یقین کی، صبر کی اور قربت خدا کی۔ پھر وہ آہستہ قدموں سے مسجد سے باہر نکل گیا اور پیچھے صرف خاموشی رہ گئی۔ حیدرآباد کی شام اداسی کی چادر اوڑھے خاموش کھڑی تھی۔ ایک پرانی بوسیدہ گلی کے آخری موڑ پر اینٹوں سے جھانکتے بوٹے اور سیلن زدہ دیواریں وقت کی بے رحمی کی گواہی دے رہے تھے۔ ایک خستہ حال گھر جس کی چھتیں ٹپکتی، دیوار ٹوٹی اور دروازہ چرچراتا تھا، ان دونوں کا نیا ٹھکانہ بنا تھا۔ احمد، جو اسماعیل کا پرانا دوست تھا، خاموشی سے انہیں یہاں تک لے آیا۔ مجھے آپ کو یہیں تک پہنچانا تھا، احمد نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں فردان کے سپاٹ چہرے پر جم گئیں، جبکہ روما ایک سیاہ نقاب میں چھپی بیٹھی تھی، جیسے خود سے چھپ رہی ہو۔ اسماعیل بھائی نے کچھ بتایا ہے؟ روما بے قراری سے بول پڑی۔ احمد نے لمحہ بھر خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ آواز میں گویا ہوا۔ آپ کے ابا نے پورے شہر میں اپنے آدمی پھیلا دیے ہیں۔ وہ آپ کو ڈھونڈ نکالنا چاہتے ہیں اور فردان بھائی کو قبر میں اتارنا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ دروازے کی چرچراہٹ اور احمد کے قدموں کی آواز دور ہوتی گئی اور کمرے میں صرف خاموشی باقی رہ گئی۔ روما اچانک زمین پر پنجوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کے نقاب کے پیچھے سے سسکیاں پھوٹنے لگیں۔ وہ دہاڑے مار کر رونے لگی۔ میں نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا، میں بہت بری ہوں۔ وہ خود سے گلہ کرنے لگی۔ فردان اس کے سامنے جھکا۔ رو کیوں رہی ہو؟ اگر ہم پکڑے گئے بابا آپ کو مار دیں گے، وہ اس کا ہاتھ تھامے کانپتی آواز میں بولی۔ اگر تم ایسے روتی رہو گی تو میں پکڑے جانے سے پہلے ہی مر جاؤں گا۔ فردان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے آنسو صاف کیے۔ نقاب ہٹ چکا تھا، اس کے دائیں گال پر انگلیوں کے سرخ نشان اور پھٹے لب سب کچھ چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ یہ عورت کن زخموں سے گزر کر اس تک آئی ہے۔ روما نے ندامت سے نظریں جھکا لیں۔ آپ کی محبت کا کتنا بڑا امتحان لے لیا میں نے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ۔ فردان نے اس کے لبوں پر نرمی سے ہاتھ رکھ دیا۔ چھوڑا تو تب بھی نہیں تھا جب تم میری کچھ نہیں لگتی تھی، اب تو تم میری بیوی ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ روما اس کے بازوؤں میں دفن ہو کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ 2 دن سے جو وہ مضبوطی کا خول اوڑھے ہوئے تھی، اب وہ قلعہ ٹوٹ چکا تھا۔ ہر آنسو میں پچھتاوا، تکلیف اور بے پناہ سکون گھلا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد فردان نے اس کا سر اپنے سینے سے الگ کیا، اس کے چہرے کے زخموں کو غور سے دیکھا۔ میری بیوی کو بہت مارا ہے نا انہوں نے، ہے نا؟ روما نے سر ہلایا، پھر سے سسکنے لگی۔ کیوں کھائی یہ مار؟ مجھے پہلے ہی بلا لیتی، ایک فون کرتی، سب چھوڑ کر آ جاتا۔ اسی لیے نہیں بلایا کہ آپ نہ آئیں۔ روما کی آواز میں ٹوٹا ہوا عزم تھا۔ فردان نے اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ کیوں؟ روما نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ کیونکہ مجھے خود آپ کے پاس آنا تھا۔ فردان کی مسکراہٹ جیسے دل کی گہرائی سے نکلی ہو۔ پاگل بیوی، اس کے لہجے میں محبت تھی، فخر تھا اور ایک بے لوث قبولیت کا رنگ۔ فاطمہ کے فون پر بار بار کال آ رہی تھی، موسیٰ کی کال۔ اسکرین پر اس کا نام بار بار چمک رہا تھا، لیکن فاطمہ
उस वक्त नीचे किचन में थी। रईसा के लिए पानी और दवा का इंतज़ाम कर रही थी। कॉल्स का सिलसिला रुका नहीं। 1 2 3 10 मिलाकर उसने फ़ोन उठा लिया। मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम्हें अंदाज़ा है इस बात का? मूसा की आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी, जैसे उसके लहजे के साथ बिजली कड़क रही हो। फातिमा ने एक पल के लिए आंखें बंद की, खुद को संभाला। सॉरी, मैं नीचे थी, लेकिन आप इतने गुस्से में क्यों हैं? उसे अंदाज़ा हो चुका था, फरदान की खबर मूसा तक पहुंच चुकी है। मुझे तुमसे मिलना है, रात में आऊँगा। मूसा का लहजा अब हुक्म बन चुका था। और हाँ, मेरी बात गौर से सुनो, आज के दिन तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। आई समझ? मैं आ रहा हूँ। ये कहकर उसने कॉल काट दी, बगैर फातिमा की कोई बात सुने। फातिमा ने बेबसी से फ़ोन को देखा। वो कहना चाहती थी कि आज उसने रईसा को अस्पताल ले जाना है, मगर मूसा ने उसे मौका ही नहीं दिया। उसने फ़ोन मेज़ पर रखा और लंबी सांस लेकर कमरे से बाहर निकली। नीचे हॉल में रईसा चादर ओढ़े सोफे पर तैयार बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की जर्दी और थकन की झलक थी। तुम तो चादर लेने गई थी, खाली हाथ क्यों आ गई? रईसा ने उसे आते देखकर पूछा। फातिमा चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, तुम मामा के साथ चली जाओ डॉक्टर के पास, मुझे कुछ काम है। रईसा ने उसे गौर से देखा, जैसे उसके चेहरे से कुछ समझने की कोशिश कर रही हो, मगर कुछ कहे बगैर मुस्कुरा दी। अच्छा ठीक है, मैं उनको बुला कर लाती हूँ। वो पलटी और हल्के कदमों से अलिशबा बेगम के कमरे की तरफ बढ़ गई। फातिमा वहीं खड़ी रह गई, जैसे जहन में सैकड़ों ख्याल शोर कर रहे हों। श्याम कई दिनों से उलझा हुआ था, मगर फातिमा की बातों ने उसे झिझोड़ दिया था। दिल बेचैन था और जहन बार बार रईसा के चेहरे को याद कर रहा था। आखिरकार उसने फैसला कर लिया, अब उसे रईसा से एक बार ज़रूर मिलना है। वो आहिस्ता कदमों से हफ्सा बेगम के कमरे में दाखिल हुआ। अम्मी, मैं जा रहा हूँ। लहजा धीमा मगर अज़म वाज़ेह था। हफ्सा बेगम ने उसे एक नज़र देखा। जहाँ जाना है जाओ, तुम अब इतने बड़े हो चुके हो कि अपने फ़ैसले खुद ले सकते हो। उनके अल्फाज में जहर नहीं था, लेकिन तलखी ज़रूर थी। श्याम उनके कदमों में बैठ गया। अम्मी, क्या हो गया? मैं गुस्से में था, मानता हूँ अपनी गलती, अब उसी को लेने जा रहा हूँ। हफ्सा बेगम की नज़रें उस पर ठहर गईं और उनकी आवाज़ में नमी उतर आई। क्या मिला तुम्हें? सबके सामने तमाशा लगाकर ज़रा शर्म नहीं आई उसे घर से निकालते हुए? हमारी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं रहने देते श्याम? श्याम ने नदामत से उनका हाथ थामा। अम्मी, गलती हो गई, मैं मानता हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दे। वो लम्हा भर चुप रही, फिर आहिस्ता से बोली, अगर रईसा मान गई वापस आने को तो समझे तुम्हें माफ़ी मिल गई। जाओ उसे ले आओ। उन्होंने मुंह फेर लिया, लेकिन आंखों में उम्मीद की एक धुंधली सी झलक बाकी थी। श्याम खामोशी से उठा, कमरे से बाहर निकला। अपने कमरे में जाकर उसने शावर लिया। सफ़ेद सादा कुर्ता पहना, आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ाई, बालों को तरतीब दी, हल्का सा परफ्यूम लगाया। उसके चेहरे पर आज कुछ बदलने की तमन्ना थी। वो सैंडल पहनते ही बाइक की चाबी थामकर बाहर निकल गया। गेट पर बाइक रोकते ही उसकी नज़र अलिशबा बेगम रईसा पर पड़ी। रईसा ने उसे देखा और फौरन नज़रें फेर ली। उसके चेहरे पर वही खामोश नाराज़ी छुपी थी जो आंखों से साफ झलक रही थी। वो अभी उस शख्स का सामना नहीं चाहती थी जिसने उसे सबके सामने बेइज्जत करके निकाल दिया था। श्याम बाइक से उतरा। दिल धड़क रहा था, लेकिन कदम मजबूत थे। अस्सलाम वालेकुम चाची, कैसी हैं आप? वो आहिस्ता से उनके करीब आया, लेकिन नज़र रईसा पर ही जमी रही। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बेटा। अलिशबा बेगम ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा। कहीं जा रही हैं चाची? श्याम ने रईसा के सर पर लिपटी चादर को देखकर पूछा। हाँ, रईसा को डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए, चलो तुम भी साथ चलो। अलिशबा बेगम के लहजे में नरमी और हिकमत दोनों थी। वो जानती थी कभी कभार दो दिलों के दरमियान सिर्फ एक मुख्तसर सा रास्ता दरकार होता है। श्याम ने रईसा की तरफ देखा। वो अब भी चुप खड़ी थी। ठीक है चलिए, उसने मुख्तसर जवाब दिया, मगर उसकी आंखों में नदामत थी। अस्पताल का माहौल हमेशा की तरह मसरूफ़ था। इस्तकबालिया पर मरीजों का शोर, एलानात की आवाज़ें और सफ़ेद दीवारों पर दौड़ते वक्त का दबाव हर तरफ महसूस हो रहा था। अलिशबा बेगम, रईसा और श्याम अब इंतज़ार गाह में बैठे थे। रईसा खामोश थी, नज़रें झुकाए,
अपनी उंगलियों से दुपट्टे का कोना मरोड़ रही थी। श्याम की नज़रें मुसलसल उसी पर टिकी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता मगर मौका ढूंढ रहा हो। मिसेस रईसा। नर्स की आवाज़ पर रईसा चौंकी, फिर खड़ी हो गई। मैं साथ चलती हूँ। अलिशबा बेगम उठी मगर रईसा ने नरमी से उनका हाथ थाम लिया। नहीं आंटी, मैं खुद चली जाऊंगी। वो अकेली डॉक्टर के कमरे में दाखिल हो गई। कुछ लम्हे गुजरे, फिर जब वो वापस आई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। आंखें किसी सोच में डूबी हुई थी, जैसे वो खुद अपने अंदर कुछ बड़ा समझने की कोशिश कर रही हो। अलिशबा बेगम ने फिक्र से पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? रईसा ने उन्हें खामोशी से एक कागज़ थमाया। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। अलिशबा बेगम ने पढ़ते ही चौंक कर रईसा की तरफ देखा। रईसा? श्याम ने भी करीब होकर रिपोर्ट ले ली और वहीं थम गया। कागज़ के सादे से अल्फाज जैसे उसके दिल पर हथौड़े की तरह गिरे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, द पेशेंट इज़ 5 वीक्स प्रेग्नेंट। श्याम ने रईसा की तरफ देखा। वो अब भी खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों में कुछ भीगने लगा था। रईसा, श्याम आहिस्ता से बोला। रईसा ने उसकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से सर नफ़े में हिलाया। नहीं श्याम साहब, मैं अब भी वही रईसा हूँ जिसे तुमने सबके सामने निकाला था। अब मेरे साथ सिर्फ एक नहीं, 2 जिंदगियाँ जुड़ी हैं। मुझे इन दोनों के लिए सुकून चाहिए। श्याम ने आखिरी कोशिश करना चाही। पर मैं बदल जाऊंगा रईसा, वादा करता हूँ। श्याम उसको अपने साथ घर लेकर जाना चाहता था, लेकिन मैं फ़िलहाल तुम्हें आजमाना नहीं चाहती। मुझे वक्त चाहिए, और तुम्हें भी, रईसा ने धीमे लहजे में कहा। वो पलटी। अलिशबा बेगम का हाथ थामकर आहिस्ता आहिस्ता अस्पताल के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। श्याम वहीं खड़ा रह गया। सूरज कई बार अपनी जगह बदल चुका था। दिन कब शाम में ढल गया, किसी को खबर न हुई, लेकिन याहिया साहब के माथे पर तेवर बस वैसे ही चढ़े हुए थे, कड़े तने जैसे किसी लम्हे फट पड़ेंगे। 3 दिन बाद इलेक्शन था और इस वक्त उनकी बेटी का यूं गायब हो जाना उनके लिए सियासी नहीं, ज़ाती बेइज्जती बन चुका था। पूरा हवेली का अमला पागलों की तरह रोमा और फरदान को ढूंढने में लगा हुआ था, मगर अब तक कोई खबर न मिली थी। अचानक याहिया साहब की आवाज़ हवेली की दीवारों से टकरा कर गूंजी। सकीना, सकीना, कहाँ मर गई तुम? सकीना सहम कर भागी, दुपट्टा ठीक करती, कदम लड़खड़ाती उनके कमरे में पहुंची। जी साहब, तुमने रोमा को स्टोर रूम में बंद किया था ना, तो वहाँ से निकली कैसे? यह साहब का चेहरा अंगारा हो चुका था। अगले ही लम्हे उनका हाथ लपका और सकीना के बालों की गुत्थी मुट्ठी में आ गई। साईं, खुदा की कसम, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने दरवाज़ा बंद किया था, नहीं मालूम वो कैसे हो गई। सकीना हाथ जोड़ती गिड़गिड़ाती ज़मीन पर झुक गई, आंखों में खौफ और पसीने में डूबा हुआ चेहरा। गार्ड को बोलो, सीसीटीवी फुटेज निकाले अभी। याहिया साहब ने उसे धक्का देकर फर्श पर गिराया। उनकी आंखों में अब सिर्फ गज़ब था, रहम नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं थी। सकीना रो रो कर ज़मीन से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कदम कँपा रहे थे। उसी लम्हे मरहा, जो इत्तफ़ाक़न कमरे से बाहर से गुजर रही थी, दरवाजे के करीब रुक गई। वो अंदर की चीख पुकार सुन चुकी थी। उसकी आंखों में घबराहट और परेशानी का अक्स एक साथ उभरा। सीसीटीवी फुटेज, उसने दिल ही दिल में दोहराया। फिर याद आया, इस्माइल वो फुटेज डिलीट करना भूल गया था। स्टोर रूम के कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड किया होगा। अगर वो फुटेज याहिया साहब तक पहुंची तो सब कुछ खुल जाएगा। मरहा की परेशानी पर पसीना उतर आया, जैसे आने वाली आंधी का शोर उसे अभी से सुनाई देने लगा हो। अलिशबा बेगम आहिस्ता कदमों से रईसा को लिए घर के अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर थकन मगर होंठों पर मुस्कुराहट थी। ड्राइंग रूम में फातिमा पहले से मौजूद थी, बेचैनी से दरवाजे की तरफ नज़रें जमाए बैठी। जैसे ही उन्हें अंदर आते देखा, वो फ़ौरन उठकर तेज़ी से आगे बढ़ी। अम्मी, कहाँ रह गए थे आप लोग? कब से इंतज़ार कर रही हूँ। अलिशबा बेगम मुस्कुरा कर बोली, अरे आराम से बेटा, क्या हो गया, सांस तो लेने दो। फातिमा उनके करीब आई और बेसब्री से पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा, सब खैरियत है ना? अलिशबा बेगम ने धीरे से रईसा का हाथ थामा, फिर फातिमा की तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोली, तुम फूफो बनने वाली हो, एक नहीं 2 बच्चों की। फातिमा के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई, जैसे लम्हा भर को उसके कदम ज़मीन पर ना रहे हों। उसने बेयकीनी से रईसा की तरफ देखा और तेज़ी से उसके करीब बढ़ गई। रईसा, अम्मी सच कह रही हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा।
रईसा ने निगाह झुकाकर धीरे से हाँ में सर हिला दिया। उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट फैल गई। फातिमा ने फौरन उसका हाथ थाम लिए। माशा अल्लाह मेरी रईसा, क्या खुशखबरी ले आई हो। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और श्याम अंदर आया। उसकी आंखें थकी हुई थी, लेकिन उसके हाथ में मेडिसिन का शॉपर था। रईसा ने उसे एक नज़र देखा और बिना कुछ कहे खामोशी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई, जैसे उसके वजूद से भी बचना चाहती हो। श्याम ने शॉपर फातिमा की तरफ बढ़ाया। ये दवाइयाँ दे देना उसे, वक्त पर खा ले। फातिमा ने सोफे पर बैठते हुए तीखे लहजे में कहा। हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं श्याम साहब। वो सीढ़ियाँ तुम्हें नज़र आ रही होंगी। तुम्हारी बीवी उधर गई है, खुद जाकर दे आओ। श्याम का चेहरा सख्ती से ढल गया, लेकिन कुछ कहे बगैर खड़ा रहा। अलिशबा बेगम ने नरमी से श्याम के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, फातिमा बिल्कुल ठीक कह रही है, जाओ खुद जाकर दे आओ। कल भाभी को ले आना, रईसा मान जाएगी। तुम दोनों को साथ रहना है, जिद छोड़ो। श्याम ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया, फिर कदम बढ़ाते हुए सीढ़ियों की तरफ गया। उसके कदम तेज थे, मगर दिल में झिझक साफ दिखाई देती थी। फिजा में एक अनकही कश्मकश बाकी थी। एक तरफ खुशी की खबर, दूसरी तरफ रिश्तों की अधूरी सी गिरह। श्याम आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा। उसके कदम भारी थे। हाथ में मेडिसिन का शॉपर पकड़े वो उसके कमरे के सामने आकर रुक गया, जहाँ रईसा अभी अभी गई थी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। रईसा खिड़की के पास खड़ी बाहर आसमान की तरफ देख रही थी। हल्की धूप में उसके चेहरे का अक्स और भी नरम लग रहा था, जैसे वो खुद को वक्त की धुन में छुपा रही हो। श्याम ने दरवाजे पर दस्तक दी। रईसा ने पलट कर देखा। आंखों में कोई हैरत नहीं, बस वही खामोश शिकवा। ये दवाइयाँ हैं तुम्हारी। श्याम ने शॉपर आगे बढ़ाया। लहजा रिवायती शौहरी हुक्म के बजाय मासूम सा था। रख दो टेबल पर। रईसा ने उसको देखना ज़रूरी नहीं समझा। देखो, बच्चों की माँ बनने वाली हो, थोड़ा रहम खा लो उनके अब्बा पर। श्याम ने उसके करीब जाकर आहिस्तगी से कहा। रईसा ने नाक चढ़ाई। अब्बा? उनके अब्बा को है उनकी माँ का ख्याल। श्याम ने एक लम्हे उसे देखा, फिर झुककर उसका हाथ थामा। कोशिश कर रहा हूँ रईसा, परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे काबिल ज़रूर बनना चाहता हूँ। हाथ छोड़ो मेरा और जाओ यहाँ से। रईसा ने हाथ नहीं छोड़ा, मगर चेहरा अब भी खिड़की की तरफ था। मेडिसिन वक्त पर ले लेना, श्याम ने आहिस्तगी से कहा। कल अम्मी अबू के साथ लेने आऊँगा, सबके सामने माफ़ी भी मांगूंगा, प्लीज़ माफ़ कर देना। श्याम धीमी सी मुस्कुराहट के साथ बोला। उसका हंसना ज़रूरी था, कमबख्त हंसते हुए हसीन लगता था। कल की कल देखेंगे श्याम साहब, रईसा कहते साथ चेहरा मोड़ गई। रात की स्याही हवेली के अतराफ गहरी चादर की मानिंद छा चुकी थी। सिक्योरिटी रूम की मध्यम रोशनी में बैठे याह्या खान की आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। सीसीटीवी की फुटेज जैसे जैसे आगे बढ़ती, उनके चेहरे के तासरात और भी बिगड़ते जाते। स्क्रीन पर मरहा और इस्माइल के चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। वही लम्हा था जब रोमा को भगाया गया। मरहा, मरहा, मरहा! याह्या खान दहाड़ते हुए अपनी जगह से उठे और तेज़ कदमों से हवेली की तरफ लपके। उनके कदम जैसे ज़मीन पर नहीं, किसी तूफान पर पड़ रहे हों। हवेली के कमरे में मरहा जैसे सांस लेना भी भूल गई थी। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वो जान चुकी थी राज फाश हो चुका है, सज़ा तय है, बस वक्त का इंतज़ार है। कहा था ना, अगर तुम्हारी बहन ना मिली तो तुम्हारी मौत पक्की है। माँ जबी बेगम ने सड़ लहजे में कहा, मगर आंखों में असराब साफ झलक रहा था। माँ। मरहा ने बस इतना ही कहा कि दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ से खुला और याह्या खान अंदर दाखिल हुए। उनकी आंखें आग बरसा रही थी। रोमा कहाँ है? उन्होंने मरहा के बालों को मुट्ठी में जकड़ कर झिझोड़ा। पापा, मुझे कुछ नहीं पता। मरहा की आवाज़ लरज रही थी, जिस्म कांप रहा था। तुम इस्माइल के साथ मिली हुई हो, मेरे खिलाफ साजिश की, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाया तुम दोनों ने। मैं ख़त्म कर दूंगा तुम दोनों को। याह्या खान का हाथ अचानक उसकी गर्दन पर जा पहुंचा। उंगलियों की गिरफ्त सख्त से सख्तर होती जा रही थी। मरहा की आंखें उबलने लगी, चेहरे पर मौत का साया छा गया। बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। मरहा की सांसें उखड़ने लगी, चेहरा नीला पड़ने लगा। माँ जबी बेगम वहीं खड़ी तमाशाई बनी देखती रहीं।
आंखें भर आई लेकिन पाँव जुम्बिश तक ना कर सके। शायद वो जानती थी बेटी को बचाने की कोई गुंजाइश नहीं। फ़ोन करो इस्माइल को, फ़ौरन, अभी इसी वक्त बुलाओ। याह्या खान ने उसे झटक कर ज़मीन पर फेंक दिया। मरहा ने झूठ गढ़ा, मेरी बात हुई थी, वो आ रहा है। याह्या खान ने उसे एक बार फिर पैरों तले रौंद डाला। कमरे में मरहा की चीखें गूंज रही थी और हर चीख दीवारों से टकराकर वापसी पर और भी हौलनाक बन जाती। आज के लिए बस इतना ही। रोमा तो किसी तरह निकल गई है, लेकिन मरहा का क्या होने वाला है? मरहा और इस्माइल, उन दोनों की तो खैरियत नहीं। याह्या खान उन दोनों को जान से मार देंगे। और मूसा, वो जो बहुत अच्छा था, अब वो बहुत ज़्यादा बुरा होते जा रहा है। उसका रवैया सबके साथ साथ फातिमा के साथ भी बहुत बुरा होते जा रहा है। और शहसवार, देखते हैं अब क्या होते जाए आगे। शहसवार ही कहानी का हीरो है, वो तो पता चल चुका है। हम मिलेंगे कल आने वाले एपिसोड के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे दुआ में याद रखें। ओके, टाटा, बाय।